Hello to all football lovers in Pakistan. Welcome to the Super Football Show only on Jio Super. मैं हूँ आपकी होस्ट मतीरा और मेरे साथ है दो फुटबॉल फ्रीक्स कुतुब एंड खुर्रम. क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. Doing really well and really excited. Okay guys, आप लोग हमें ये बताएंगे इस हफ्ते हुआ क्या? बहुत कुछ हुआ. There've been 7 days of non-stop action in the football world, Matira. English Premier League में कुछ बहुत अच्छे मैचेस हुए. स्पेनिश ला लीगा में भी दो बहुत अच्छे मैचेस हुए. और इसके साथ साथ इटालियन सीरी आ के बारे में बात करेंगे, यूरोपा लीग एज वेल एज चैंपियंस लीग, पाकिस्तान प्रीमियर लीग एंड समथिंग स्पेशल फॉर द लेडीज. साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल तीनों जीत गए. मतलब it's amazing. जबरदस्त गेम्स ओवर द वीकेंड. चेल्सी ने जो गेम खेला था अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड, जॉन फ्रैंको जोला के साइड के साथ एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, उसके साथ 4-1 इन लोगों ने हराया था चेल्सी ने. और जबरदस्त गोल्स फ्रॉम डीजे ड्रॉगबा. अ वेरी ब्यूटीफुल गेम डाउन द विंग by Florent Maludo, who also got a goal, and the scoring was opened by a Brazilian defender called Alex, and he had a very good strike. Scott Parker scored for West Ham United, and that puts Chelsea in second with a game in hand against Manchester. Did you know Scott Parker is formerly a Chelsea player as well? He used to be in the youth system. Yeah. He used to be in the youth system. No, he was with Charlton, and Chelsea bought him from Charlton. Didn't they sell him to West Ham afterwards? Then they sold him to West Ham. Acha, one thing I want to add, Man United also had a very good game. Manchester United, of course. Wayne Rooney, of course. Yeah, you're a Rooney fan, number 10. I'm actually supporting it. Yes, absolutely right. Yeah, well, Matira, your team did really well. Yes, it did. Wayne Rooney got 2 goals. Berbatov got a goal. Lekin, for me, a major contributor was Jose Nani. Nani ने इस साल बहुत pick up किया, and you can see Ronaldo के जाने के बाद down the wing. He has done really well. Who didn't do well was Valencia. लेकिन जब Jisung Park आया ना, you could really see United playing the real true brand of football. Yes, absolutely right. एक मजे की बात ये है कि Manchester United now top of the table. All Manchester United fans are going to be very happy. Yeah, of course. But for Chelsea fans, you know, they still have a game in hand. Very good. Guys, I need to tell my fans something. Please go ahead. Please go ahead. Go on then. Please. Thank you. Okay guys, what I'm going to tell you guys is this shirt, ये shirt जो Manchester United का है, आपका हो सकता है. 101% ये आपका हो सकता है. आपको सिर्फ हमें SMS करना पड़ेगा, email करना पड़ेगा, जिसके सबसे ज़्यादा SMS उसका ये shirt होगा. Now can we continue? But another great game over the weekend. क्यों बताएंगे इसके बारे में? It was Hull and Arsenal. ठीक है? Arsenal man यार मैं मैच देख रही थी, क्या गोल था वो? कौन सा गोल? 90 seconds वाला. Yeah, she saw the game. She saw the game. Yes. ठीक है. So the best thing was ना, देखो Arsenal during the week against Porto 5-0 जीती हैं, ठीक है? But they got to play their own brand of football, quick passing, silky football, just the way Wenger likes it. Hull ने वो allow नहीं किया इनको midfield में इतना tight कर दिया कि अपनी पसंद की. Lucky थे ये लोग. Lucky नहीं थे. Well, yeah, you could say that in the end. Arsene Wenger Hull did really well. But second half में क्यों जो हुआ था, Arsene Wenger ने tactics थोड़ा change किया था और खोल गया था game. Hull बहुत pressure लगा रहा था. बहुत pressure डालना पड़ा था उनको. एक player था किसके बारे में? Later, क्योंकि my mood will go away. And right now, I think I need to discuss about the flop player of the week. Oh my God, Sule Montari is the flop player. Oh my God. हम आपको बताते हैं मतीरा क्या हुआ है. Former Portsmouth man that was chosen by Jose Mourinho. इसने क्या किया था? He caused a foul. In the 81st minute इसने एक foul cause किया था. उसके बाद जो free kick हुआ था, जब वो wall में खड़ा था, इसने हाथ ऊपर करके ball नीचे कर दिया था. Basically, excuse mistake ने ना पूरे game को change कर दिया. Two mistakes in the man a minute. He is the guy who gave the penalty away. उसके बाद AC Milan were on the back foot. अच्छा, Sule Montari का जो नाम है ना, Sully. First name is actually a short for Suleiman. And today we're discussing about World Cup. And today's topic is Group B. अभी मैं आप लोगों को पैकेज दिखाती हूँ और आप लोगों को तो पता होगा पैकेजेस बस देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी देखती हूँ. So आप लोग भी जाएं, हम भी देखते हैं. मैराडोना को अगर फुटबॉल की दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी कहा जाए तो ये गलत ना होगा. उन्होंने अर्जेंटीना को आलमी कप में एक यादगार जीत दिलाई. मैराडोना दौरे हाजिर में इसी टीम की कोचिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं. ताहम ये टीम आलमी कप के क्वालिफाइंग राउंड में तसल्ली बख्श कारकर्दगी ना दिखा सकी, जिसमें बोलिविया के खिलाफ मैच में उन्हें 6-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि टीम के स्क्वाड में बैलन डोर हासिल करने वाले मेसी के अलावा मिशरानो और कार्लोस टावेस जैसे बेहतरीन फुटबॉलर्स मौजूद हैं.
1978 के यादगार आलमी कप के बाद मैराडोना जैसे तजर्बेकार कोच के जेर तरबियत इन खिलाड़ियों से 2010 आलमी कप जीतने की उम्मीद की जा रही है। अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क नाइजीरिया आलमी कप में चौथी मर्तबा हिस्सा लेगा। कोच लॉर्स लैगरबैक के जेर तरबियत सुपर ईगल्स ने 1996 के ओलंपिक्स में सोने का तमगा हासिल किया। इसके अलावा वो 94 और 98 के आलमी कप में दूसरे मरहले तक पहुंचे। इस टीम में प्रीमियर लीग के कुछ बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें चेल्सी के जॉन ओबी मिकाइल, बोल्टन के डैनी शीटू और एवर्टन के जोसेफ याकोबो और योबो शामिल हैं। क्वालिफाइंग मरहले में ओबाफेमी मार्टिन्स के 2 शानदार गोल्स की बदौलत उन्होंने कीनिया को 3-2 से शिकस्त देकर जनूबी अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अहम खिलाड़ी पार्क जी सुंग एशिया की सबसे कामयाब फुटबॉल टीम जनूबी कोरिया के कप्तान हैं। इस टीम ने 2002 के आलमी कप में अपनी सरजमीन पर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की, जहां इसने इटली और स्पेन जैसी बड़ी टीमों को शिकस्त दी। इस दौर में जनूबी कोरिया के लिए कोचिंग के फराइज गस हिडिंग ने सरअंजाम दिए। आजकल इस टीम के कोच हो जाएंग मो हैं। 2006 के आलमी कप में अपने ग्रुप से क्वालिफाई ना करने के बायस आने वाले आलमी कप के दूसरे मरहले तक पहुंचना पार्क जी सुंग और टीम के लिए सबसे अहम होगा। 2004 में एक शानदार और हैरान कुन जीत हासिल करने वाली आलमी कप ग्रुप बी की चौथी टीम ग्रीस है, जिसके कोच ओटो रेगाल ने टीम की कामयाबी में एक अहम किरदार अदा किया है। रेगाल पिछले 10 साल से ग्रीस के लिए कोचिंग की खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। उनकी कोचिंग की बदौलत क्वालिफाइंग मुकाबले में उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, ताहम उन्हें यूक्रेन के खिलाफ एथेंस में प्लेऑफ मैच खेलना पड़ा, जो कि बराबर रहा, जिसके बाद डोनेट्स्क में होने वाले मुकाबले में ग्रीस को यूक्रेन के खिलाफ 1-0 से बढ़तरी हासिल हुई। इस रिपोर्ट को देखकर मुझे तो यही लग रहा है that Argentina and Greece have more chances and actually I think 60% Argentina का होगा, 40% या 50% Greece के लिए होगा। So what do you guys say? मैं सोच रहा हूँ कि Nigeria and Argentina are the people who are going to go. That's what I would have thought as well. इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो लोग जीते भी थे about नहीं, वो 2004 में जीते, but their team ना they've got no standout players. उसके पास कैरी आइगॉस है, सामरा से आगे इतने बड़े प्लेयर नहीं है, वो अपने कोच पे बहुत डिपेंडेंट है। रेगल जर्मन कोच है, तकरीबन 8-9 साल से इनके साथ है। 2004 में he took them to the final. He won the Euro. Well, right now I think what we'll go for is something really nice. I know आप लोग भी इसी चीज का इंतजार करते हैं, हम भी इसी चीज का इंतजार करते हैं। Talent of the week. Let's see. मेरा नाम है बिलाल मलेजाई, मैं 13 साल का हूँ। मैं 6 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं राइट विंग खेलता हूँ। अगर पाकिस्तान का चांस मिलता है पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, वरना इंशाल्लाह यूरोप में खेलूंगा। So this Chinna Munna 13-year-old small boy is planning to beat Ronaldo. चुन्ना मुन्ना किस बात की यार? चुन्ना मुन्ना किस बात की? 13 years old, 13 साल का है बच्चा। छोटा कद का है मगर इंशाल्लाह he'll grow up to be another Ronaldo for And Pakistan. he said something so right. He said अगर पाकिस्तान मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, मैं यूरोप में जाकर खेलूंगा। इंशाल्लाह जब तक ये बड़ा होगा, पाकिस्तान will support him. Ambition we need guys like him. Ambition तो देखो, we need guys like him.